Okay, so are we audible, everyone? Anyone? Anyone? Yeah. You are audible. Yes, yes. GV. Yeah, yeah. Okay. Good evening, everyone. So basically, it's a nice, warm, cool evening. So all the first years, all our juniors. So today is basically we have just organized a small online webinar for like you all. That is roadmap to programming. So for this time being, we have like around 105 participants. Okay, so I guess Sonodeep, no more joinings. Okay, so the thing is that today we will be covering some topics for the which will be like helping you all in like starting up from which point you will be means start for the coding or you can say programming. So basically we will be focusing on that, and there are some more giveaways, giveaways too. And for today, we have our speaker with us, like Dripto Majumdar, the technical lead of CES. So I would ask Dripto to continue. Mic on, Dripto. Hi everyone. How are you all? Fine, fine. Good. Great. Okay. So we will be starting our event right now. So here, as we have prior to this have already discussed that what we were going to do, we are going to show you a roadmap of programming, and the language that will be it will be in C. Okay. Why C? Because you will be studying C very soon from second semester, I guess. And I will try my level best to to give you a proper foundation that will help you to build further developments in this language and in other programming language, whatever you will do. Okay, so let's show my screen. Okay, just I'm interrupting. Guys, it's a to make this session more interactive, I guess. So anyone have any like queries, then you can like put up your raise up your hands, and rather than like make some more interactive. Okay, it will also be an interesting for us then. Okay, let's share the screen. Okay, so roadmap to programming. Okay, so first I want to say you about what is CES. Okay, CES we are founded on 2017. It's an official club of computer science and engineering department. Okay, and our HOD sir is guiding us through and enlightening us that what to do and what not, and he will also be giving guidance whenever you will come to second year and further years. Okay. The second thing is let's introduce quickly to our team members. So here we are the lead, our Arunang Shanag, the club lead, me myself, Dripta Majumdar, the technical lead, and here we have management lead Arpan Dey, we have social media lead Naman Raj, and we have senior candidate Ratnajit Shaha. They are the technical members, senior candidates from technical Ratnajit Shaha and Shanadeep Shahabuddar, senior candidates from management Shreya Prasad and Rimi Datta, and senior candidate from social media Arnab Vishwas. And the other cadets, they are from the second year, MD Iftikhar Hussain, Amol Kumar, Avijek Roy, Aniket Kumar, Bhaskar Kumar, Ayan Ajbari, Meher, Kimray, and Kaushik Vishwas. Okay, let's do it. So, what do you have idea about programming? So, programming, as we all know, let's go with the basics. Okay, what is programming? Programming is nothing. It's just an instruction that you are giving to the machine. Okay, let's understand one thing. We know one thing that programming doesn't understand A, B, C, D. It doesn't understand alphabets. Going through the very basic. Then what it happens? It happens to binary. It converts, and how it converts? We have a term called ASCII values. Okay, what is called ASCII? American Standard Code for Information Interaction Interchanging. Okay,
तो इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, पहले जो अल्फाबेट्स है पहले उसको ASCII में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है ना, ASCII से बाइनरी, और बाइनरी समझ जाता है कंप्यूटर्स. So this is what programming means. Programming means is a set of instruction that is given to the computers, what through which हम लोग जो भी टास्क देते हैं वो फुलफिल करता है. as simple as that. ठीक है ना. तो हमेशा याद रखना ASCII में कन्वर्शन होता है, ठीक है ना. अल्फाबेट्स जो होता है ABCD, जैसे कि ASCII वैल्यूज तुम देखना, कभी भी गूगल में सर्च करना, किधर भी सर्च करना, व्हाट इज ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. ए से ए का ASCII वैल्यू है जैसे कि 97 एग्जांपल दे रहा हूँ, बी का है 98, सिमिलरली ऐसे चलता है. तो अब हम लोग को जब कंप्यूटर्स को जब 97 98 मिल जाता है, वो तो आसानी से उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकता है. अब वो इंस्ट्रक्शन पकड़ लेगा. तो दिस इज द वे हाउ प्रोग्रामिंग operates. Okay, so here we have a beautiful code by our Steve Jobs. Okay, everyone should learn how to code. It teaches you how to think. Okay, let's move. तो देखो, पहले ही इधर मीम आ गया, ठीक है. इधर मीम क्या बोल रहा है, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर. चलो एक प्रोग्रामिंग करते हैं पहले. वेरी फर्स्ट लेट वो प्रोग्राम. ओके, चलो इधर से शुरू करते हैं. तो अच्छे से समझ में आएगा कि क्या बोलना चाहता हूँ मैं. चलो पहले तुमको एक चीज दिखाता हूँ. सी में कोड कर रहे हैं ना हम लोग, तो पहले मैं कोड लिखता हूँ, एक एक चीज तुमको फिर बोलता हूँ क्या होता है चीजें. तो पहले देखो क्या होता है, ठीक है ना. सब लोग तो पहले हेलो वर्ल्ड ही करता है. ठीक है ना. ये तो हम लोग का हर सभी का ये फर्स्ट प्रोग्रामिंग होता है. तो पहले इसको रुको, इसको सेव करते हैं पहले एक बार, हेलो वर्ल्ड नाम से. हेलो वर्ल्ड से सेव कर लेते हैं, ठीक है. अब करते हैं फर्स्ट चीज, सब कुछ बताऊंगा लाइन टू लाइन क्या चीजें है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है. देख, बिल्ड का पहले देखते हैं ये सही है भी कि नहीं, वो भी तो देखना जरूरी है. देखो, ठीक है. और फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड सबका फर्स्ट प्रोग्राम होता है, ठीक है ना. अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया इधर, क्या करता है हम. चलो जो भी, अब समझो क्या बोलना चाहता हूँ मैं, ठीक है ना. सी में कर रहे हो ना, सी में या C++, सी में जो करते हैं, ये लाइन क्या होता है, ये जो लाइन होता है हैश इंक्लूड, ये होता है, इसको बोलते हैं हम लोग. क्यों इंप्लीमेंट करते हैं, स्पेसिफिक हेडर फाइल को इंपोर्ट करने के लिए, इंक्लूड करने के लिए. और हेडर फाइल कौन सा होता है, अब लाइब्रेरीज कौन सा होता है, ये जो स्टैंडर्ड stdio.h है ना, ये होता है. ये एक लाइब्रेरीज है. सी में पैकेजेस यूज नहीं किया जाता, जैसे कि बहुत सारे लैंग्वेजेस है, C++ हो गया, जावा हो गया, बाकी सब में, ठीक है ना. उन सब में हम लोग क्या होता है, पैकेजेस रहता है. तो इसमें क्या होता है, पैकेजेस नहीं लाइब्रेरीज यूज करता है, हम लोग लाइब्रेरीज यूज करते हैं. और लाइब्रेरीज क्या है, कलेक्शन ऑफ हेडर फाइल्स, ठीक है ना. ये stdio.h का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है ना. जो बेसिक इनपुट आउटपुट होता है ना, इनके लिए है. अब इसके कोई, अगर तुम स्ट्रिंग से मैनिपुलेशन करने जाओगे तो इस लाइब्रेरी से काम नहीं चलेगा हम लोग का बॉस, ठीक है ना. तो तब दिखाऊंगा क्या होता है, कैसे होता है. तो पहले ये मेन फंक्शन है, मेन के अंदर लिखा जाता है. मेन फंक्शन क्या है, कंपाइलर समझता है कि हाँ कोड स्टार्ट कहाँ से होता है. दैट्स व्हाई वी राइट द मेन फंक्शन. ओके, एवरीवन शुड नोट दिस. हम लोग मेन फंक्शन क्यों लिख रहे हैं इधर, बिकॉज द कंपाइलर शुड अंडरस्टैंड वेयर द कोड इज स्टार्टिंग फ्रॉम, ठीक है. तो देख प्रिंट एफ पहले इसको आउटपुट स्टेटमेंट बोलता है, और रिटर्न जीरो, ठीक है ना. और रिटर्न जीरो क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप इंट है. तो एक काम करो भाई, सब लोग माइक ऑन करो, एवरीवन.
आई वांट इंटरेक्शन समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं चल रहा था थोड़ा 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 ना हाँ भैया आ रहा है। हाँ भैया ठीक है ना थोड़ा थोड़ा रहा है। ठीक है ना एवरीवन एवरीबॉडी आ रही है ठीक है आ रहा है चलो सारा ओके जब जब बोलूंगा थोड़ा माइक ऑन करके फीडबैक देते रहना ड्रिफ्ट ओके भाई ओके ओके गाइस भैया इधर कौन कौन है जिनको कोडिंग आता है बताओ अबे साले राइस हैंड हटाओ बे हैंड हटाओ क्या ड्रिफ्ट आई एम ऑडिबल या यू आर ऑडिबल ओके किस किस को अभी इधर थोड़ा बहुत कोडिंग्स आता है लाइक वॉइस इज ब्रेकिंग उन लोग सिर्फ हाथ उठाओ जिन लोग को बेसिक कोडिंग्स आता है उन लोग थोड़ा हाथ उठाओ ओके ओके सो मैक्सिमम ऑफ लाइक यू ऑल आई गेस सो है नहीं उतना कुछ भी मतलब यू आर नॉट लाइक यूज्ड टू विद द कोडिंग्स सो बेसिकली जो दीप्तो दिखा रहा था वी विल हैव अ हैंड्स ऑन as well as he will be touching the technical parts also like the concepts and everything टच हो जाएगा अगर कोई भी दिक्कत है बेझिझक बोलो ठीक है जस्ट ऐसे क्लास मत करो कि ऑनलाइन क्लास है ये ठीक है ना जस्ट मेक इट सम इंटरैक्टिव मोड ठीक है ओके फाइन लेट्स कंटिन्यू ओके माइक ऑफ कर दो अब सब लेट मी कंटिन्यू तो देखो ये हो गया ये है सबसे बेसिक कोड पता चल गया प्रिंटर से आउटपुट लेते हैं हम लोग आउटपुट देते हैं ठीक है ना मेन फंक्शन से कंपाइलर को पता चल जाता है मैं सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ पहले ठीक है ना उसके बाद कुछ कुछ कोड अच्छे खासे कोड भी करेंगे हम लोग मेन फंक्शन से हम लोग का क्या हो रहा है मेन फंक्शन से कंपाइलर को पता चल रहा है कि ठीक है चलो इधर से कोड स्टार्ट हो रहा है हम लोग को इधर से रीड करना स्टार्ट करना है ठीक है ना इंट क्या है हम लोग का इंट है रिटर्न टाइप है इसीलिए क्योंकि इधर तो कुछ रिटर्न करना है हम लोग को इधर तो सिर्फ प्रिंट कर दिया हम लोग ने प्रिंट एफ से आउटपुट दे दिए बट रिटर्न भी तो करना है तो रिटर्न करने के लिए जीरो रिटर्न कर रहा है मतलब कुछ जीरो रिटर्न कर रहा है अगर हम लोग इधर वॉइड दे देना तो वॉइड क्योंकि वॉइड मतलब कुछ नहीं वॉइड तो कुछ नहीं होता तब इसको देना जरूरी नहीं है ठीक है ना इसको दोगे तो तब भी चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है तो रिटर्न टाइप का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया बहुत लोगों का आई थिंक सो ठीक है अब थोड़ा इसको रन कर देते हैं हेलो वर्ल्ड ठीक है चलो अब थोड़ा जल्दी जल्दी मूव करते हैं ठीक है अब देखो ठीक है हम लोग का ये एरर्स वगैरह दिखाते हैं वो थोड़ा बाद में दिखाते हैं क्या होता है नहीं होता है और एक साथ दिखा देंगे सब कुछ तो सिंटैक्स जो मैंने दिखाया वही सिंटैक्स है कीवर्ड्स क्या है रिजर्व्ड है जैसे कि फॉर रिटर्न ये जो रिटर्न दिखाया ना मैंने वो होता है कीवर्ड्स वो रिजर्व्ड वर्ड्स है लैंग्वेज का ठीक है ना अब सिंटैक्स कहते हैं सिंटैक्स मतलब होता है स्केलेटन मतलब रूल्स सेट ऑफ एकदम रूल्स होता है जो मुझे हम लोग को फॉलो करना है सिर्फ ठीक है ना उसको फॉलो करके हम लोग को मूव ऑन करना है ठीक है ना सिंटैक्स मतलब वही है जैसे मैंने दिखाया कैसे चलता है इंट में कहाँ से क्या हो रहा है हैश इंक्लूड सब सिंटैक्स के अंदर पड़ता है ठीक है ना सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसको भूलना नहीं है ठीक है ना गलती नहीं करना है नहीं तो एक एरर आता है जिसको बोलते हैं सिंटैक्स एरर नहीं तो कंपाइलेशन एरर ये दोनों चीज आता है ठीक है ना फिर वेरिएबल्स ये पहले तुम ये देख लो फिर हम लोग हैंड्स ऑन भी करते हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स वेरिएबल्स होता है जैसे कि अब कहीं भी देखो दो नंबर का सम हो गया तो सम करने के लिए पहले तो हम लोग को क्या करना चाहिए पहले हम लोग को स्टोर करना चाहिए नंबर ठीक है ना तो दो नंबर स्टोर कर दे उस और उसका टाइप क्या होगा अगर नंबर कुछ भी हो सकता है इंटीजर और फ्लोट मतलब क्या फ्लोट मतलब पॉइंट्स डेसिमल नंबर्स 0.2 2.2 ऐसा करके ठीक है ना तो इंटीजर फ्लोट या तो कैरेक्टर भी होता है कैरेक्टर का तो सम नहीं होता मतलब कैरेक्टर हो सकता है ठीक है ना कुछ भी हो सकता है ये होता है डेटा टाइप्स उसको एक डेटा टाइप में वेरिएबल को स्टोर करता है फिर उस डेटा टाइप का वेरिएबल उसमें स्टोर करता है ठीक है ना ये हो गया वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप फिर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या आता है ईफेल्स हो गया स्विच हो गया आपका लूप्स हो गया फॉर वाइल डू वाइल ठीक है ना फिर फंक्शंस
फंक्शंस क्या हो गया, हम लोग का जो फंक्शंस होता है, फंक्शंस मतलब ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो एक स्पेसिफिक टास्क करता है हम लोग के लिए, ठीक है ना। कुछ इनपुट्स लेता है पैरामीटर्स के थ्रू, ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट्स में इनपुट दिया जाता है, उधर एक पैरामीटर्स रहता है जो जिसके थ्रू हम लोग जो काम बोल रहे हैं वो काम किया जाता है। मैं सब दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पहले देख लो थोड़ा, ठीक है ना। देखो इसमें ये क्या है, एक मीम है, ये क्या बोल रहा है पता है, इसमें क्या बोल रहे हैं, सिंटैक्स एरर, क्यों सेमीकोलन नहीं है, सेमीकोलन इधर होना चाहिए इस पोजीशन में, पर सेमीकोलन नहीं है। चलो थोड़ा दिखाता है, हैंड्स ऑन भी करता है थोड़ा, थोड़ा देख लो पहले। तो पहले आ जाओ, हम लोग क्या क्या सीखेंगे, थोड़ा एक आइडिया, थोड़ा 1% आइडिया दे दिया कि क्या क्या होता है। पहले तो इंट्रोडक्शन सी कर दिया, ठीक है ना, क्या क्या होता है नहीं वो करूंगा मैं, ठीक है ना, थोड़ा आइडिया मिल गया तुमको। वेरिएबल्स डेटा टाइप्स का थोड़ा हिंट दे दिया क्या होता है। ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस पर आएंगे, ऑपरेटर्स क्या होता है, एक्सप्रेशंस क्या होता है, एक्सप्रेशंस, फिर लूप स्टेटमेंट वगैरह, ठीक है ना, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप कंट्रोल, फिर पॉइंटर्स, पॉइंटर्स थोड़ा एडवांस पार्ट होता है वो भी थोड़ा टच कर देंगे, ठीक है ना। फिर रिसोर्सेज देंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, ठीक है ना, जो तुम लोग बोलोगे बस उसके बाद देखते हैं। देखो पहले तो इंट्रोडक्शन टू सी, बेसिक चीज पहले एक दिखा देता हूँ क्या है देख लो सभी, ठीक है ना। मतलब क्या होता है, सी क्या है, एक लैंग्वेज है जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लिखा गया था, ठीक है ना। तो बहुत एफिशिएंट होता है, जो सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग और हायर लेवल के लिए, दोनों के लिए मतलब काम होता है, बहुत एफिशिएंट है, अच्छा है। पर एक कुछ कुछ चीजें बोलता हूँ तुमको सी के बारे में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जानना बहुत ही जरूरी होता है। सी क्या है ना, सी एक कंपाइलिंग लैंग्वेज है, इट्स नॉट एन इंटरप्रेटिंग लैंग्वेज, ठीक है ना, ये कंपाइलिंग लैंग्वेज है। और सी क्या है, सी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, जैसे कि जावा में ओरा होता है, राइट वंस रन एनीवेयर, लिखो किधर भी रन किधर भी करो कोई दिक्कत नहीं है। पर सी का ऐसा सीन नहीं होता है। सी क्यों कंपाइलिंग लैंग्वेज बोला जाता है, मैं बोलता हूँ तुमको, दिखाता हूँ। देखो प्रोसेस मैंने सी का, पहले हम लोग ना क्या करते हैं, सोर्स कोड लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने सोर्स कोड मतलब क्या, जैसे कि ये कोड लिखा, ये इसको बोलते हैं हम लोग सोर्स कोड। सोर्स कोड के बाद वो कन्वर्ट होता है, ठीक है ना, मशीन कोड में, बाइनरी बाय कंपाइलर, मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। उसके बाद ना क्या होता है, ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होता है, डॉट ओ, देखना तुमको दिखाता हूँ, ये देखो फाइल, देखो फाइल देखने से तुम समझ जाओगे। ये देखो, इसको अच्छे से देखो, ये ऑब्जेक्ट फाइल है डॉट ओ, ठीक है ना, डॉट ओ। तुम स्ट्रक्चर देखो अच्छे से स्ट्रक्चर देखो, ये देखो डॉट ओ है, मतलब ये ऑब्जेक्ट फाइल है। और उसके बाद क्या आता है, वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में क्रिएट होता है, डॉट एक्सी। ये ना ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है कंपाइलेशन प्रोसेस के टाइम ही, कंपाइलेशन के दौरान ही ये सब क्रिएट हो जाए। ये देखो एक्सी फाइल, ये हमने थोड़ी ना किया, डॉट ओ डॉट एक्सी फाइल वाला थोड़ी ना हमने किया, पर ये क्रिएट हो जाता है, इसलिए इसको कंपाइलिंग लैंग्वेजेस बोलते हैं। हमने तो सिर्फ ये फाइल लिखा था, कोड लिखा था, पर ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, इसके लिए ये कंपाइलिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो थोड़ा अब देखते हैं, अब जो है थोड़ा प्रोसीड करते हैं, और इसके अंदर थोड़ा हैंड्स ऑन करवा देता हूँ मैं। पहले क्या करता हूँ, थोड़ा देख ही लो, पहले प्रेजेंट देख ही लो, उसके बाद तो वेरिएबल्स का जो मैंने बोला पहले देख लो, अच्छे से देख लो। मैं एक एक चीज फिर दिखा के कोट करके दिखाता हूँ, कौन सा क्या जो मैंने बोला क्यों जरूरी है, ठीक है। ए रेस्पॉन्स, एवरीवन रेस्पॉन्स चल रहा है, सही है। Yes. 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 सही है। अरे सर मत बोलो यार, भैया बोलो, सर क्या होता है भाई, ठीक है ना, ठीक है ना, एवरीबडी एवरीबडी। हाँ भैया ठीक है। हाँ भैया ठीक है, ठीक है यस भैया। हाँ भैया चल रहा है। ठीक है। कोई डाउट है, कोई डाउट है? हाँ भैया। नहीं भैया। अच्छा नहीं भैया। डाउट होगा तो बोलना, ठीक है, जब पूछूंगा बोलना डाउट होगा तो वेरिएबल्स देखो, वेरिएबल्स होता है, ठीक है ना, इंटीजर बहुत सारा। मैं पहले तो तुम ये देख लो, मैं हैंड्स ऑन में ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है, तो मैं तुमको हैंड्स ऑन करके दिखा दे दूंगा कैसा होता है, सब कुछ अच्छे से अच्छे अच्छे कोड करूंगा, ठीक है ना। इंटीजर
फ्लोटिंग पॉइंट कैरेक्टर डबल, मैंने बोल दिया। अब देखो क्या होता है थोड़ा। अच्छा पहले देख ही लो प्रिंट ये तो देख लो कि आउटपुट कैसे लेता है। देख लिया कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिखा दिया, ठीक है ना। और स्कैनएफ इनपुट, इनपुट किस फंक्शन से लिया जाता है, स्कैनएफ फंक्शन, और आउटपुट प्रिंटएफ फंक्शन। ये फंक्शंस है, मेथड्स है, ठीक है ना, फंक्शंस बोलते हैं इसको। इनपुट लिया जाता है स्कैनएफ से, आउटपुट दिया जाता है प्रिंटएफ से। देखो फॉर्मेट देखो इसका, फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है परसेंट, ये जो होता है परसेंटेज एस या परसेंट, उससे स्ट्रिंग पता चल जाता है, और आर्ग्यूमेंट लिस्ट जो लूंगा मैं, आर्ग्यूमेंट इनपुट कर लूंगा। और इसका आउटपुट कैसा होता है, प्रिंट है वैसे। थोड़ा देख लो, मैं फिर दिखाता हूँ कोड में। ये जो होता है ना परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ, परसेंटेज सी, ठीक है ना, डबल टाइप के लिए होता है। तो ये भी कन्वर्शन कैरेक्टर्स है, ठीक है ना। ये क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं हम लोग इन लोग को। किस टाइप का हम लोग इनपुट ले रहे हैं या किस टाइप का हम लोग आउटपुट दे रहे हैं। जैसे कि हम लोग अगर इंटीजर टाइप का इनपुट ले रहे हैं तो उसमें होगा परसेंटेज डी, ठीक है ना। ये देखो फॉर एन इंटीजर इन डेसिमल सिस्टम। अगर हम लोग फ्लोटिंग टाइप का ले रहे हैं तो परसेंटेज एफ। अगर हम लोग कैरेक्टर ले रहे हैं तो परसेंटेज सी। और स्ट्रिंग टाइप का ले रहे हैं, और स्ट्रिंग क्या होता है, सी में स्ट्रिंग क्या होता है, एरे ऑफ कैरेक्टर्स होता है, ठीक है ना। ये याद रखना है, ये कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है बहुत जगह कि व्हाट इज स्ट्रिंग इन सी। सी का अलग है, ठीक है ना। बहुत जगह जैसे कि जावा में स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट, बट वो तो क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम है तो उसका अलग है। पर सी में स्ट्रिंग होता है क्या, स्ट्रिंग होता है एरे ऑफ कैरेक्टर्स होता है ठीक है। चलो देखते हैं, पहला प्रोग्राम लिख दिया हम लोग ने। अब थोड़ा ताकि सब कुछ कवर हो, एक कुछ कुछ कोड करेंगे हम लोग। हेलो वर्ड तो सबने देख ही लिया, ठीक है ना। ये ऑपरेटर्स होता है, एक्सप्रेशंस होता है। इक्वल टू हम सब कोड करके दिखाएंगे, कोड करते करते जब वो करोगे तो मजा आएगा ज्यादा, ठीक है ना। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, रिलेशनल ऑपरेटर्स। फिर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलो। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है, एंड लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। बिटवाइज, बिटवाइज मतलब क्या होता है ना, जैसे कि एंड, नॉर, और, जॉर, ये सब परफॉर्म करने के लिए। कभी कभी ये जो होता है ना, तुम लोग एक टर्म पढ़ोगे बाद में, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उसमें तुम अगर बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करते हो ना, ठीक है ना, ये एंड और जॉर, कुछ कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ कुछ जगह होता है, टाइम बहुत ही बच जाता है एकदम क्विकली, लाइक अ स्ट्रोकिंग स्ट्राइकिंग ऑफ टू फिंगर्स, लाइक ऐसे करके वो काम हो जाता है हम लोग का, ठीक है ना। तो वो थोड़ा एडवांस लेवल पे है, जब वो बाद में दिखाते हैं, ठीक है ना। और क्या है हम लोग का, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। मैं ये तो कंपाइलिंग लैंग्वेजेस है, लैंग्वेज है, इट्स नॉट एन इंटरप्रेटिंग लैंग्वेज। जैसे कि इंटरप्रेटिंग क्या होता है, लाइन बाय लाइन होता है, इसमें लाइन बाय लाइन नहीं होता, ठीक है ना। एकदम से चेक होता है, ट्रांसलेट होता है, जो लिखा है एकदम से होता है। और इंटरप्रेटर में क्या होता है, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन को। कंपाइलर का एग्जांपल क्या होता है, सी होता है, सी प्लस प्लस होता है, जावा। और इंटरप्रेटर पाइथन, जावास्क्रिप्ट, रूबी, ये सब, ठीक है ना। दिखाते हैं, कोड करेंगे जब तब मजा आएगा। इफल सेटल पहले देखते हैं, कुछ कुछ चीजें देखते हैं इफल्स के पहले। ये फॉर लूप से और इफल से, ओके नाइस। तो इफल्स क्या होता है ना, इफल्स में कंडीशंस टाइप का, अगर ये सही है तो ये प्रिंट करो, नहीं तो ये प्रिंट करो, ऐसा टाइप का चीज होता है। अगर ये सही है, इफ इट इज ट्रू देन प्रिंट इट, या ये काम करो। अगर नहीं है तो ये काम करो। मतलब देखो, इफ कंडीशन डू समथिंग इफ ट्रू, एल्स डू समथिंग इफ फॉल्स, ठीक है ना। और ये इफ एल्सिफ भी होता है, एल्सिफ क्या होता है, प्रोवाइड्स एडिशनल कंडीशंस। अगर ये सही नहीं तो ये, अगर ये सही है, वो सही नहीं है, चलो ठीक है, ये क्या सही है चेक कर रहे हैं, अगर ट्रू होगा तो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स पार्ट में होगा, ठीक है। ये कंडीशनल है, हम दिखाएंगे। फिर नेस्टेड होता है, नेस्टेड स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, ये सब होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को अब तक दिक्कत है तो बोलो, पर हम लोग कोड भी करेंगे, दिखाएंगे तब। एनीवन ओपन योर माइक्स, एवरीवन एवरीवन No, no भैया, no problem. No भैया, एवरीवन no शर्माओ मत problem यार। भैया, हम्म, no problem. मजा आ रहा है क्या, सही है, ठीक है। हाँ भैया. Yes भैया. हाँ हाँ भैया।
हाँ हाँ भैया ठीक है। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं, फिर कोड करते आता है असली मजा। ठीक है, लूप्स। तो लूप्स क्या होता है? लूप्स होता है एंट्री कंट्रोल लूप्स होते हैं और एग्जिट कंट्रोल। थ्योरी में पता है, थोड़ा लग सकता है कि चलो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, पर कुछ कर नहीं सकता है। ये एक प्रोसेस है कुछ भी चीज़ सीखने का। ठीक है ना? तो देख लो, जो नोट करना नोट करो, फिर जब हैंड्स ऑन करेंगे थोड़ा बहुत सिंपल सिंपल ही कोड करेंगे, ज़्यादा नहीं, तब समझाएंगे। जैसे कि लूप्स क्या होता है प्रोग्रामिंग में, कुछ भी चीज़ बहुत बार हमको चलाना है। ठीक है ना? तो हम लोग जैसे कि बोल रहे हैं कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो बार बार, थोड़ी ना हम हेलो वर्ल्ड मतलब लिख सकते हैं। हम अगर बोल रहे हैं कि 1000 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो, लिखते रहेंगे क्या? प्रिंट ऑफ हेलो वर्ल्ड, प्रिंट ऑफ हेलो वर्ल्ड, प्रिंट ऑफ हेलो वर्ल्ड, तो भाई टाइम खत्म हो गया, इट्स यूजलेस। ठीक है ना? तो ये करके कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं? लूप्स करते हैं। 3 तरीका के लूप्स होता है हम लोग में। क्या क्या 3 तरीका के लूप्स होता है? फॉर लूप, व्हाइल लूप, डुअल लूप। डुअल लूप होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। क्यों एग्जिट कंट्रोल लूप है? एग्जिट कंट्रोल का मतलब ही ये होता है, हर कोई नोट करेगा, एग्जिट कंट्रोल का मतलब ही ये होता है कि पहले काम करो फिर कंडीशन चेक किया जाएगा। पहले डू द वर्क, फर्स्ट डू द वर्क, देन द कंडीशन विल बी चेक्ड। ठीक है ना? डुअल लूप। फॉर लूप होता है वेरी सिंपल होता है, इनिशियलाइजेशन। जो सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स क्या बोला मैंने? सेट ऑफ रूल्स बोला। ठीक है ना? तो सेट ऑफ रूल्स होता है फॉर लूप। फॉर लूप में सेट ऑफ रूल्स में क्या होता है? इनिशियलाइजेशन होता है बीच में पहले, कि चलो इंट आई इक्वल टू 0। अच्छा, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? एक पॉइंट से तो अच्छा, हम लोग 1000 बार घुमाएंगे एक चीज को, 1000 बार मूव करेंगे, पर चलाएंगे कब से, कहाँ से चलाना चालू करें? वो होता है इनिशियलाइजेशन, द पॉइंट फ्रॉम वेयर यू आर स्टार्टिंग। इनिशियलाइजेशन इंट आई इक्वल टू 0 या इंट ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, जो है इनिशियलाइजेशन। फिर कंडीशन लिखते हैं हम लोग, कितना बार चलाएंगे? लेस देन इक्वल्स टू 10, 10 बार चल लिया, लेस देन इक्वल्स टू 10। फिर लेस देन इक्वल्स टू 1000, जैसे बोला मैंने प्रिंट ऑफ हेलो वर्ल्ड के हम 1000 बार लिखेंगे नहीं, 1000 बार लूप में दे देंगे, 1000 बार प्रिंट हो जाएगा बॉस। तो इसमें क्या होता है? कंडीशन की जो हमने इनिशियलाइज किया, सपोज कि वेरिएबल, वेरिएबल मैंने सिखाया क्या होता है। वेरिएबल आई हो गया, ए हो गया, बी हो गया, उसको कितना बार घुमाएंगे? अगर 10 बार घुमाएंगे, 20 बार घुमाएंगे, 100 बार घुमाएंगे, 1000 बार घुमाएंगे, लाख बार घुमाएंगे, अरब बार घुमाएंगे, कितना बार? कंडीशन में। क्या तो पीछे से भी चालू कर सकते हैं। और अपडेशन, अपडेशन मतलब क्या? एक के बाद एक, मतलब पहले 0 1 2 3, एक के बाद एक, जैसे कि 0 1 2, इसके गैप कितना है? एक एक करके है। अगर अपडेशन मतलब अगर 2 बार करके करूँ, 1 3, अच्छा 0 2 4 6, ऐसे अपडेट ऐसे भी कर सकते हैं, बीच में दो दो का गैप करके। कैसे हम लोग मूव करेंगे? वो तो सिंपल, फॉर लूप है, व्हाइल लूप है। पहले कंडीशन सिर्फ लिखो व्हाइल के अंदर, ये सिंटैक्स होता है, सब लोग सिंटैक्स देख लेंगे। व्हाइल लूप होता है, और कुछ भी काम जो करना है इधर कर दो। और डुअल लूप तो मैंने बोल ही दिया पहले क्या होता है। तो हम लोग का टाइप्स ऑफ लूप में ये 3 तरीके के लूप्स है। ठीक है? अब चलो, ये एडवांस टॉपिक है, पहले आप करते हैं हैंड्स ऑन, देखते हैं क्या किया जा सकता है। ठीक है ना? चलो पहले एक बनाते हैं फाइल, उसको बनाते हैं। क्या बताएं, क्या करें क्या करें क्या करें? चलो इफल्स दिखाते हैं पहले, इफल्स दिखाते हैं। इफल्स से क्या होता है कि पहले तो सेव कर लेते हैं इसको। ठीक है ना? इफल्स डॉट सी, पहले बोला क्या? हैश इंक्लूड, फिर stdio डॉट h। ठीक है? ये हो गया हम लोग का, मैं बोल दिया स्पेसिफिक हेडर फाइल क्या हो गया, ये सब में ज्यादा घुसने का नहीं है, असली काम करना है। इंट में लेना है कि वॉइड में लेना है? हम लोग अगर चलो, हम लोग बोल रहे हैं कि ईफेल्स करना है। ठीक है ना? अगर किसी का एज 10 है, तो वो क्या वोटिंग के लिए एलिजिबल है कि नहीं है? अगर सपोज कि ऐसा कुछ करना है, तो मैंने बोला रिटर्न टाइप, बोला सबको समझाया। ठीक है ना? रिटर्न टाइप मतलब किस टाइप का रिटर्न होगा, कुछ क्या रिटर्न होगा? ओपन योर माइक्स एंड सेमी। अगर मैं इस प्रोग्राम को करने जाऊँ कि चलो एक इंसान का एज 10 साल है, तो मैं बोल रहा हूँ कि वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है कि नहीं, इफल स्टेटमेंट दिखाएंगे। इस ये प्रोग्राम है, इसके लिए कैसा रिटर्न टाइप होना चाहिए? इंट रिटर्न वॉइड, 1 और रिटर्न
int. yes sir, 0. क्या होगा? इंट हो गया, वॉइड होगा? क्या होना चाहिए? क्या int int होगा, Void होगा. int होगा, obviously int होगा क्यू इंट होगा और क्यू वॉइड होगा? जो जिसने जिसने इंट बोला कोई बोलो। इंट क्यू होना चाहिए और वॉइड क्यू नहीं, और वॉइड होना चाहिए तो इंट क्यू। int होना ओके, चाहिए, अरे रिलैक्स करके बोलो भाई, इधर गलती करने के लिए हम लोग सब बैठे हैं। गलती करोगे तो सीखोगे, सिंपल है भाई। जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। int होगा क्या? Statement दिख रहा है इसलिए int होगा. स्टेटमेंट लिखा है इसलिए इंट होगा। रिटर्न कर, रिटर्न होगा इसलिए int होगा, void देने से तो रिटर्न नहीं होगा इसलिए। हम लोग रिटर्न करना हमने बोला प्रिंट करेंगे, हमने नहीं बोला कि रिटर्न करेंगे। हमने बोला प्रिंट करवाएंगे। ओनली प्रिंट करवाएंगे तो फिर void देने भी चलेगा। वॉइड देना ही चलेगा ना, सही है। हम लोग वॉइड देने से करते हैं। और एक चीज और बताया था तुम लोग को कि अगर इंट दे रहा है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो रिटर्न 0 करना है। 0 करना है, हाँ। याद है सबको? अरे हाँ बोलो सब, अगर हाँ या ना जो भी है बोलो, सब कोई बोलो। याद है. हाँ भैया हाँ भैया चलो चलो इस पे थोड़ा मूव करते हैं। वॉइड मेन, ठीक है। इसमें क्या है, पहले लेते सपोज कि हम लोग का इंट राजू, राजू नाम का एक लड़का है, उसका साल 10 है, 10 साल का बंदा है ये। राजू जिद कर रहा है कि हमको वोट देना है, पर राजू का पापा बोल रहे हैं नहीं, तुम्हारा एज नहीं हुआ। तो हमको दिखाना है कि प्रोग्रामिंग से कैसे, देखो कैसे। इफ हमने बोला क्या, इधर ये नहीं तो दूसरा कुछ, अगर ये सही है तो ये प्रिंट करो, नहीं है तो दूसरा करो। तो कंडीशन पहले वाला इफ में क्या होगा, अगर राजू का उम्र क्या लेस देन इक्वल्स टू 18 है, चेक करना है, ठीक है ना। सॉरी राजू है, राजू ये करते हैं राजू, ठीक है ना, हम लोग राजू है, ठीक है। राजू का उम्र क्या 18 साल से ज्यादा है? अगर ज्यादा है तो वो तो वोटिंग के लिए एलिजिबल है बॉस। तो प्रिंट एफ यस कैन वोट। अगर नहीं है, एल्स में बोला मैंने, एल्स में बोला क्या बोला, अगर पहला वाला ये जो ये है, ये अगर सही है तो फाइन, अगर नहीं है तो ये प्रिंट करवाना है हम लोग को। क्या करना है, नो कांट वोट, ठीक है। तो वह लेट्स सी, राजू तो जिद कर रहा है, देखते हैं मानते हैं कि नहीं प्रोग्राम। नहीं, नो कांट वोट, ठीक है। राजू अब वोट नहीं दे सकता, ठीक है। सबको थोड़ा थोड़ा क्या समझ में आ रहा है? सब कोई बोलो, खोलो माइक खोलो। हाँ हाँ यस भैया यस सर, हाँ Yes, यस भैया हाँ हाँ समझ आ रहा है yes. हाँ एकदम ठीक है, नाइस। उसके बाद कुछ जल्दी जल्दी कोड करते हैं, उसके बाद कुछ क्विज भी होगा जो सबको देना है, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा करते हैं स्क्रीन को, अगर दिखने नहीं रहा तो दिक्कत होगी तो। तो देखो ये चीज़ है, थोड़ा तो ईफल्स हुआ। अब थोड़ा पहले पहले दिखा देते हैं कि कैसे क्या होता है। सब कुछ का तो तुमने थ्योरी देखा, ठीक है ना। अगर जैसे ये बोल रहा है कि देखो इधर वॉइड था, सबका कुछ कुछ लोगों का डाउट था, इधर लग रहा है मुझे कि वॉइड था इसलिए हम लोग ने कुछ रिटर्न नहीं किया। अगर इसके जगह हम लोग ने इंट कर देते, ठीक है ना, तो इधर हमको रिटर्न 0 करना पड़ता। क्यों करना पड़ता? क्योंकि ये ना कंपाइलर एक्सपेक्ट करता है कि कुछ हो, कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है कि कुछ तो रिटर्न करे, क्योंकि इसका तो रिटर्न टाइप है इंट, तो रिटर्न करना चाहिए। अगर इसका रिटर्न टाइप होता फ्लोट तो इधर 0.0 रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो जो भी रिटर्न है वो तो मुझे रिटर्न अगर नहीं कर रहे हो, सपोज कि तुम मैंडेटरी नहीं है कि तुम अगर रिटर्न 0 ही करना है, ठीक है ना। अगर तुम राजू का एज रिटर्न करना चाहते हो ये 10, तो तुम इधर ये भी कर सकते हो राजू, ठीक है ना, राजू। देखते हैं क्या होता है इसका।
अच्छा ये तो तेरा, इसको क्रॉस करते हैं पहले, कंट्रोल एस। अच्छा ये तो इंट करते हैं पहले। नो कांट वोट। और ये देखो, ये 10 जो है ये रिटर्न, हमेशा इसमें क्या होता है, इधर रिटर्न दिखाई देता है, ठीक है ना। जो भी रिटर्न करो इस पोजीशन में, तुम लोग जब कोड भी करोगे खुद से, इस जगह पे दिखाई देता है हम लोग को, ठीक है ना। तो ठीक है, देखो 10 साल। अच्छा तुमको ये पहले ये दिखाता हूँ पहले, इसको थोड़ा कट कट देता हूँ तो फिर तुम लोग को सुविधा होगा। आप देखो, आप देखो थोड़ा, देखो, ठीक है। ये 10 10 दिखाई दे रहा है, इसका अगर हम लोग 12 कर देंगे तो 12 दिखाई देगा थोड़ा। चलो थोड़ा बेसिक्स को, क्योंकि इसका नाम ही है रोड मैप टू प्रोग्रामिंग, बेसिक स्ट्रॉन्ग करना मेरा काम है, तो उसका बेसिक स्ट्रॉन्ग करवा देंगे मैं हम, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं और इसको, ये देखो 12, ठीक है। देख रहे हैं सबको 12। यस अरे सर। भाई साहब, अरे हाँ यस भैया। यस भैया दिख रहा है। ठीक है, यस भैया। ठीक है, ठीक है। जस्ट बेसिक कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद कंट्रोल सेट मार देते हैं। हाँ भाई। चलो अब थोड़ा फॉर कर, मतलब लूप करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा मजा आएगा। तो इसको नाम क्या देंगे फाइल का? इसका नाम देते हैं चिंटू, ठीक है। चिंटू, चलो चिंटू अब कोड करेगा। क्या दिन आ गया भाई। चिंटू अब कोड कर रहा है। देखो, अच्छा एक काम करते हैं पहले, तुमको तो वो भी सिखाया मैंने कि कैसे स्कैनफ इनपुट वगैरह लेते हैं, ठीक है ना। तो वो भी दिखाते हैं। तो ऐसा करते हैं, देखो पहले कैसे करते हैं तुम सब देखो। पहले क्या करो, पहले तो तुम जो मेन फंक्शन मैंने बोला कि मेन फंक्शन लिखना जरूरी है, कि जरूरी है बहुत, क्योंकि नहीं तो कंपाइलर नहीं समझेगा कि कहाँ से स्टार्ट करने का, कैसे एंड करना है। तो जरूरी है, तो इंट मेन कर देते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद कैसे बोला, मैंने बोला कि इनपुट लेना है, ठीक है ना। पहले दो साम करते हैं, 2 नंबर का साम, ठीक है ना। इंट ए एंड बी, ये लिखना बहुत जरूरी है। पहले डिक्लेयर कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग डिक्लेरेशन। लिख देते हैं डिक्लेयरिंग द वेरिएबल्स, ठीक है ना। अच्छा ये जो किया मैंने, इसको बोलते हैं कमेंट आउट करना, ठीक है ना। कमेंटिंग बोलना बोलता है, कोई भी चीज लिखना है, ये कमेंट्स कभी रीड नहीं करता कंपाइलर। कंपाइलर कभी पढ़ता नहीं कि क्या लिखा है, तो ये कोड में नहीं आएगा। ये सिर्फ हम लोग प्रोग्रामर्स के लिए, कोडर्स के लिए सुविधा के लिए बनाया गया है। सी में दो तरीके से क्या बोलते हैं कमेंट्स किया जा सकता है, ये तो एक तरीका है। और एक तरीका है ऐसे, कोई भी चीज़ लिख दो इसके बीच में ऐसे, ये भी एक तरीका है, ठीक है ना। दो तरीका है, देखो अच्छे से देखो, ठीक है। तो अच्छा इसको मिटा देते हैं तुम लोग के लिए। देखो पहले बोला कि प्रिंट करो, प्रिंट एफ दो। देखो कोड ऐसे लिखना है कि रीयूज हो सके, कोड कोड ऐसे लिखना है, ठीक है ना। तो बोला कि इंटर 2 नंबर्स, यूजर को बोल रहा है इंटर 2 नंबर्स, ठीक है। अब स्कैन एफ, ये हो गया प्रिंट एफ आउटपुट देने के लिए। अब स्कैन एफ, स्कैन एफ में क्या होगा, परसेंटेज डी। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर डी क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले रहा है। क्या क्यों, इंट तो इंटीजर होता है, फ्लोट देगा तो पॉइंट टाइप का। अच्छा लॉन्ग बोल के भी एक चीज होता है, डबल बोल के भी एक चीज होता है। लॉन्ग क्या होता है, बहुत बड़ा जब हो जाता है ना इंटीजर, बहुत बड़ा वैल्यू लेना पड़ता है इंटीजर का, तब उसको लॉन्ग में करता है। और डबल क्यों करते हैं, बहुत बड़ा फ्लोटिंग टाइप का वैल्यू, मतलब पॉइंट में बहुत बड़ा वैल्यू लेना पड़ता है, तब हम लोग डबल यूज करते हैं, ठीक है ना। एक बोल दिया तुमको। अब परसेंटेज डी देना पड़ता है, 2 बार 2 इनपुट लेंगे हम। क्या होगा, ए कॉमा बी, सॉरी इसमें
एम्परसेंट ए एंड एम्परसेंट बी। अच्छा एम्परसेंट बोलता है, एंड नहीं बोलता है, इसको एम्परसेंट बोलता है, ठीक है ना। तो तुम लोग अब बोल, जब मैं करूंगा तुम लोग बोलना कि कितना कितना वैल्यूज लेना है हमको, ठीक है ना। बाद में मैं कोड करता हूँ पहले, ठीक है ना। अब हम लोग सम करेंगे, तो पहले इंट सम इक्वल टू 0 भी कर देते हैं, ठीक है ना। सम को भी 0 करते हैं, सम इक्वल टू 0। सम क्यों 0 किया, एक इनिशियलाइज करने के लिए, सम का वैल्यू 0 है क्योंकि प्लस करेंगे ना। सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। फिर कुछ चीज दिखाऊंगा एरर वेरर दिखाने के लिए, ठीक है ना। कहाँ एरर है तुम लोग बताओगे, अगर नहीं बता पाया तो मैं तो ऑब्वियसली बताऊंगा, और किस टाइप का एरर है वो भी बताऊंगा बाद में, इस कोड में बताऊंगा, ठीक है। देखो पहले सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है ना। अब मुझे प्रिंट ऑफ करना है क्योंकि आउटपुट देना है। आउटपुट क्या है, ए इक्वल्स टू परसेंटेज डी, जैसे तुम कर सकते हो वैसे कर, और डी इक्वल्स टू परसेंटेज डी। पहले सिंपल करके दिखाते हैं। देखो ए इक्वल्स टू मतलब ये तो प्रिंट हो रहा है ना, और कहाँ प्रिंट हो रहा है, और अच्छा ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होने के लिए स्लैश एन मतलब नेक्स्ट लाइन, ओके। स्लैश एन मतलब नेक्स्ट लाइन, कॉमा क्या करते हैं हम लोग, ए कॉमा बी कर देते हैं, सिंपल है। सॉरी ए कॉमा बी तो नहीं, सम, और सॉरी और ये तो वो कर दिया मैंने, सॉरी। सम इज ऐसा, वो थोड़ा बाद में दिखाते हैं वो बाकी चीजें, ठीक है। और कुछ है, और कुछ है, कुछ क्या मैं बोल रहा हूँ, बोलो भाई Yes. क्या बोल रहा हूँ, The placeholder. क्या प्लेस होल्डर। Percent D. Sum is then the placeholder of sum. नहीं 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 नहीं, क्या बोल रहा हूँ, सब बोलो, सब बोलो, इस लाइन पे बोलो। रिटर्न यस, रिटर्न 0। 0 होगा। रिटर्न Right. 0 लिखना होगा। हाँ, मैं और रिटर्न 0 की जगह कुछ और कर सकता था क्या, सब बोलेगा। गलती करो तो गलती करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर बोलेगा सब। हाँ कुछ और रिटर्न कर सकते थे, क्या रिटर्न कर सकते थे, सम रिटर्न कर सकते थे, ए रिटर्न कर सकते थे, बी रिटर्न कर सकते थे। सही है, सही है। सब सहमत है इससे, एवरीवन ओपन योर माइक्स एंड स्पीक। Yes. एवरीवन, आई मीन एवरीवन। हाँ भैया कर सकते थे। यस भैया। सबको इतना जानी है क्या, सब लोग बोलो। हाँ भैया कर सकते थे। भैया ठीक कर है, ठीक सकते है। थे। भैया। हाँ भैया कर सकते थे। गुड गुड गुड, यस भैया। ठीक है। जस्ट इंटरेक्शन चाहिए हमको, नहीं तो समझ में नहीं आएगा ना, तुम लोग सुन भी रहे हो कि नहीं, ठीक है। Okay भैया, okay. हाँ हाँ, देखो आप बोलो, नंबर बोलो, क्या लो, बोलो, 2 नंबर चाहिए मुझको। सर 2 2 and 5। 2 and 5, 23। चलो उसके बाद और बार रन करेंगे तो 23 भी ले देंगे, ठीक है। सम इज 7, ठीक है। आया, यस यस। ठीक है ना। हम्म, हाँ तो बहुत एक दो चीज तो सिखाई दिया तुम लोग को, ठीक है। अब थोड़ा और चीजें भी सिखाते हैं। चलो कुछ कुछ जगह मैं बोलता हूँ, इधर बोलो कि क्या गलतियां है, ठीक है ना। इधर बोलो, अब देखो रन करवाते हैं, देखते क्या होता है। देखो इधर हम लोग को एक लाल मिला, क्या बोल रहा है, इसको अच्छे से देखो। नहीं दी होगा। क्यों होगा, क्यों होगा, क्या है इसमें गलती, क्या है। सेमीकोलन नहीं है उसमें, इसलिए वो एरर दिखा रहा है। सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स Syntax एरर। error, राइट सिंटैक्स हाँ। एरर। राइट 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 राइट। ये सेमीकोलन देने से हम लोग का सिंटैक्स एरर मिट जाएगा, ठीक है ना।
तो इसको हम लोग सिंटैक्स एरर तो बोलते ही है, उसके साथ साथ हम लोग एक एक और चीज है, कंबाइंड नेम भी है इसका, जिसको बोलते हैं हम लोग कंपाइलेशन एरर। कंपाइलेशन एरर में क्या होता है कि जो कंपाइलिंग टाइम में कंपाइल कर रहा था ना, तभी देखो इधर एरर आया था। सब कोई देख पा रहे एरर का सेक्शन? ये देखो, मेरा कर्सर फॉलो करो तो देख पाओगे सब लोग। ये जो एरर एक्सपेक्टेड इधर नहीं था पहले, ये देखो, ठीक है, देख पा रहे हो सब? Yes, भैया. हाँ Yes, भैया। भैया. Yes, भैया. राइट, हाँ भैया. फैंटास्टिक फैंटास्टिक, ठीक है। तो इसमें सेमीकोलन होगा, ये कंपाइल टाइम एरर है, ठीक है ना। और रन टाइम एरर क्या है? रन टाइम एरर है कि तुम अगर रन टाइम में करना चाहते हो कुछ, ठीक है ना, तब आता है रन टाइम एरर। अच्छा, इधर एक गलती क्या है, क्या हो इस लाइन में, बोल सकते हो कोई? इस लाइन में ये जो मैंने We don't सिलेक्ट need to करके रखा write ना, the sum at the last of the printf because we are returning sum already. रिटर्न कर दिया मतलब बॉस खत्म, उसके बाद रीड ही नहीं करेगा। हाँ, ये एक भी चीज है, देखोगे तुम? चलो दिखाता है तुमको, रिलैक्स करते हैं। अब देखो ये लाइन ना प्रिंट ही नहीं होगा, देखो तुम, ये इनपुट तो लेगा, इनपुट तो लेगा, चलो 23 दे दिया, 45 दे दिया, पर देखो ये जो पहले बोल रहा था ना इधर, ये इस लाइन पे सम इज, देखो सम इज आया ही नहीं, सिर्फ 68 No, रिटर्न कर दिया। I was talking about something else. I was talking about the row number 7. The printf one. प्रिंट फोन में, हाँ, अच्छा क्या है इसमें गलती, क्या है बोलो, किस जगह में गलती है बोलो तो। There's no mistake, but the sum at the last is not needed anymore. क्या बोल रहा हूँ, जरूरत ही नहीं है No. इसका, इसका सही पकड़ रहे हो ना तुम, इसका बोल रहे हो ना, हाँ हाँ. इसका जरूरत ही नहीं है। चलो देखते हैं जरूरत है कि नहीं, इसका जरूरत असल में है, पर तुमने, चलो मैं दिखाता हूँ तुमको। चलो इसको पहले ये करते हैं, 0 करते थे तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हुआ, देखते हैं। अच्छा, इसमें तो तेरा वो कर दिया, हाँ, अब देखते हैं क्या हो पाता है। No, नहीं, अभी हमें फिर प्लेस होल्डर चाहिए। आपने रिटर्न से हटा दिया, फिर वहां पे हमें प्लेस होल्डर चाहिए हाँ, होगा। मैं यही बोल रहा हूँ, इसमें क्या होता है, कहाँ प्लेस होल्डर? इसमें, हाँ, इसमें प्लेस होल्डर में %d होगा। राइट, वेरी गुड वेरी गुड, परसेंटेज आ, डी होगा। आपने पहले रिटर्न में सम को रखा था, तो मैंने कहा था कि प्लेस होल्डर से भी हटा दे। ठीक है, नाइस, वेरी गुड, रिटर्न आई में लाइक रहेगा दिस काइंड तो ऑफ फिर इंटरेक्शन। अगर रिटर्न में सम हो गया तो फिर ना प्लेस होल्डर चाहिए, ना कॉमा देके फिर सम लिखने की जरूरत है। अगर रिटर्न में ही सम लिखा है तो दोनों मैं करने वही से भी कह रहा क्या था। जाता है, दोनों भी कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, दोनों ही हो सकते हैं। हाँ ठीक है, चलो इसको देखता, अब कर देता, अब देखो दोनों ही होगा हम लोग के काम में। बोलो नंबर्स बोलो, बोलो। 5 and 7. 5 and 10. 5 and 10 आया, पहले नहीं आ रहा था 15 इधर इस पोजीशन में, है ना, अब आ गया। हाँ, अभी एक ही लाइन में है। हाँ, अब 0, ये देखो इधर 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि कौन बोलेगा? अभी रिटर्न 0 है। हाँ, तब बोलो रिटर्न भाई, 0 क्योंकि है। रिटर्न 0 लिखा था इसलिए. सिंपल, जस्ट मैं बेस क्रिएट कर रहा हूँ Return ताकि बाद 0 में था मुझे इसलिए। राइट 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 राइट, बेस्ट करवा रहा हूँ तुमको। चलो थोड़ा, अब क्या करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी भैया, अरेज अगर हम करते हैं। रिटर्न 0 को ही हटा दे तो, मतलब 8 नंबर रो को ही अगर हटा दे तो देखते हैं क्या होता है, देखते हैं ना क्या होता है। चलो देखते हैं, मैं थोड़ा सा करता हूँ। आ तो रहा है, क्यों आ रहा है बोलो? आ तो रहा है ना। एक चीज, इसको मैंने सेव नहीं किया लगता है। हाँ ठीक है, आएगा सेम चीज ही, पर बोलना है क्यों नहीं आ रहा है, तुम्हारा आइडिया दो। चलो 4 करते हैं और 9 ये वो करते तो हैं। प्रिंट हो रहा है ना, तो फिर से रिटर्न देने से तो वो सेव नहीं ही नहीं होगा नहीं ना. नहीं,
इसका मतलब नहीं है। फिर देखो। ले लेता है जीरो। बोलो बोलो बोलो। कंपाइलर अपने आप ही ले लेता है, कोई रिटर्न नहीं देना है तो। ये लेता है पर नो, एक्चुअली ये सक्सेसफुल टर्मिनेशन ऑफ द कोड के लिए ये लिखना चाहिए हम लोग को, ठीक है। इंट मेन, इधर बहुत सारे कंपाइलर में शायद से प्रॉब्लम आ सकता है जीसीसी के बाद। ये इंट जो जब जब करोगे हमेशा याद रखना इधर रिटर्न देना ही है, ठीक है ना। रूल मैंने बोला ना, रूल्स, कुछ रूल्स है, सिंटैक्स याद है ना सबको? अरे बोलो यार। हाँ भैया यस भैया। यस भैया। यस भैया। यस, इट कम्स अंडर सिंटैक्स। भैया इंट देने से ही वो रिटर्न होने मतलब लिखना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, अगर वॉइड देंगे ना उसका जरूरत नहीं है। वॉइड देने से देखो ये कुछ रूल्स होता है जो हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। ये तो बना के चला गया, ठीक है ना, अब तो क्या कर सकते हैं, हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा, तो इसका जरूरत नहीं होता, ठीक है ना, इधर रिटर्न जीरो का, ठीक है। चलो इधर कुछ तो बना देते हैं इसको। चलो पहले जल्दी जल्दी लूप समझते हैं, ठीक है ना। लूप करते हैं, तब एक इंटरेस्टिंग चीज भी दिखाएंगे तुमको, ठीक है ना, लूप के बाद। चलो हैश इंक्लूड, ठीक है। इसके बाद देखो हम लोग जब लूप करेंगे ना, ये देखो अब लोग सपोज इन नेचुरल नंबर्स, ठीक है, इन नेचुरल नंबर्स का सम करते हैं 1 to n, देखते हैं क्या होता है। पहले तो इंट सम इक्वल टू 0 करते हैं, फिर चलो फॉर लूप पहले दिखाते हैं तुमको। फॉर इंट आई, मैंने ये लाइन क्या है सबको बोला था, ये लाइन को बोलते हैं हम लोग इनिशियलाइजेशन। देखो इंट को हमने इनिशियलाइज कर दिया है, बोला था कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब बोलूंगा क्या, कहाँ तक कंडीशन, कहाँ तक रन करेगा, ठीक है ना, कहाँ तक रन करेगा। चलो सपोज बोल दो 10 तक रन करो तुम, 10 तक रन करेगा। कैसे कैसे रन करेगा, अपडेशन, अपडेशन 1 प्लस प्लस आई प्लस प्लस, मतलब आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है पता है? रुको इधर से बोलता हूँ। इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट आई होता है प्लस कैसे? हाँ बोलो बोलो बोलो। by 1 plus यस 1 आई प्लस इक्वल्स टू, इक्वल में टू चलेगा। I+1 यस राइट, post आई, fix increment. यस पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। चलो पता प्लस तो है। इक्वल टू 1 भी लिखते हैं ना। क्या बोलो बोलो बोलो। आई प्लस प्लस को हम आई प्लस इक्वल्स टू 1 भी लिख सकते हैं ना। राइट, वी कैन, हम लोग इसको हाँ आई प्लस इक्वल्स टू 1 भी लिख सकते हैं, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर सब कोई ऐसे ही लिखता है, ठीक है ना, सुविधा के लिए, स्टाइल है सबका, ठीक है ना। चलो ये करते हैं हम लोग, अब सम करते हैं, सम जैसे कि वो बोला सम इक्वल्स टू सम प्लस आई करते जाते हैं, ठीक है ना, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, तो बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, हम लोग को सम कैलकुलेट होगा, उसके बाद रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न सम कर देंगे। मैंने सम तो सिखा दिया, अब रिटर्न में कोई ज़्यादा डाउट नहीं होना चाहिए, आई थिंक सो। कंट्रोल एस मार के सेव कर लेते हैं, रन एंड बिल्ड करते हैं। देखो गलती होगा क्या, नहीं 55 आया, ठीक है, ठीक है। हाँ भैया। हाँ भैया हाँ। चलो किसी को हाँ कंफ्यूजन भैया। होना था, ठीक है। हाँ भैया। चलो ओके नाइस, इसको आई कोस टू आई प्लस 2 कर देते हैं तो क्या होगा देखते हैं। फिर क्या हो, मेरा कंपाइलर का थोड़ा गड़बड़ है। I=I+2 देना चाहिए शायद से। बोलो बोलो बोलो, कहाँ गलती किया बोलो। I=I+2 देना चाहिए था। तो I+2 होगा ना, I=I+2। देखो क्या होता है देखते हैं। श्योर, श्योर है? हाँ भैया। हंस क्यों रहे हो भाई, बोलो बोलो हाँ हो सकता है भैया। ठीक है नाइस, ठीक है।
क्लियर है? एक्सक्यूज मी भैया, हाँ बोलो 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 बोलो। मैं तो VS कोड यूज करता हूँ और हम्म। मैं जब रन करता हूँ तो टर्मिनल में होता है, पर वो जो बाद में एक्सिक्यूशन वाला फाइल आता है उसको जब ओपन करता हूँ तो हम्म। वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। आपका क्लोज क्यों नहीं हो रहा? कौन सा बोलो तो? जैसे कि मैं ये कर रहा हूँ, रन एंड बिल्ड कर रहा हूँ, मेरे को देखते हैं। अच्छा ये, हाँ, ऑटोमेटिकली दिखा के बंद हो जाता है। हाँ, ये जो आपका दिखा रहा है ना, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ये वाला आता नहीं है ये और वाला खुद नहीं ही आता क्योंकि बोलता हूँ, खुद ही बंद ये हो वाला जाता नहीं। है। Bro, हाँ, ये वाला integer I is not defined. क्या बोला? Integer I is not defined. नो, इट्स हाँ डिफाइंड I इक्वल्स टू 0। हाँ, इंट आई इक्वल टू 0 तो है। इसको तो इधर ही इनिशियलाइज कर रहा है। देखो, तुम इधर भी इनिशियलाइज कर सकते हो, नहीं तो तुम इसको नहीं, इधर ही इनिशियलाइज करना पड़ेगा इसको। अगर वाइल लूप करते तो बाहर इनिशियलाइज किया जा सकता था, पर ये सिंटैक्स है फॉर लूप का, इनिशियलाइज तुमको इधर ही करना है, तो फिर डिफाइंड अनडिफाइंड का प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। ठीक है? और जो वो भाई जो बोल रहे हो तुम, जो VS कोड वाला, क्योंकि इसका अलग है, थोड़ा प्लेटफॉर्म अलग है, ये कोड ब्लॉक्स है, ठीक है ना? तो इसीलिए कोड ब्लॉक्स भी कर सकते हो तुम लोग। कोड ब्लॉक्स असल में ये C और C++ के लिए है, तो तुम लोग कोड ब्लॉक्स में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? मैं मेरा ऑलराइट, हाँ, ऑलराइट ठीक है भैया। ना? VS कोड में कभी कभी क्या होता है कि प्रॉब्लम देता है, ठीक है ना? इतना सारा एक्सटेंशन इंस्टॉल किया जाता है बहुत सारे लैंग्वेजेस के लिए, GCC के बाद भी, MinJW के बाद भी, तो दिक्कत दे सकता है। तो ये स्पेसिफिक फॉर C एंड C++ है, तो फिर कर सकते हो एज यू विश। ठीक है? तुम लोग को एक इंटरेस्टिंग कोड दिखाता हूँ मैं। चलो, अगर मैंने तुमको बोल दिया, ठीक है, तुम जब तक मैं फाइल बनाता हूँ तुम लोग सोचो कैसा करना हो सकता है, क्या जा सकता है। ठीक है ना? 2 नंबर दिया हम तुमको, उसको स्वैप करना है, ठीक है ना? अगर बोला कि A इक्वल्स टू 10 है और B इक्वल्स टू 20 है, तो मुझे A को 20 बनाना है और B को 10 बनाना है। कैसे बनाओगे सोचो, बोलो। सर भैया, और एक वेरिएबल लेके, एम्प्टी वेरिएबल लेके स्वैप कर सकते हैं। राइट राइट। और बाकी लोग समझे क्या बोले? हाँ भैया। हाँ, मेरा भी वही जवाब था। क्या हुआ है ना? फिर इस सेम चीज को मैं थोड़ा पॉइंटर्स में दिखा दूंगा, ठीक है ना? पॉइंटर्स में कैसे होता है, ठीक है ना? क्योंकि पॉइंटर्स भी, क्योंकि एडवांस टॉपिक है, पर वो दिखाना जरूरी है मेरे लिए, नहीं तो दिक्कत हो जाता है। चलो, इसको बोलते हैं हम लोग। चलो फटाफट करते हैं, टाइम इज रनिंग फास्ट। ठीक है? चलो, पहले क्या किया हम लोग ने कि हम लोग को स्वैप करना है, ठीक है ना? 2 वेरिएबल्स हैं, A 10 और B 20, उसको मुझे स्वैप करना है, ठीक है ना? तो स्वैप कैसे करना है देखो सब, बहुत लोग को पता हो सकता है, बहुत लोग को नहीं पता हो सकता है, उसका दिक्कत नहीं है, दिखाता हूँ मैं तुमको। इंट A इक्वल्स टू 10 एंड B इक्वल्स टू 20। मैं क्या करना चाह रहा हूँ? मैं चाह रहा हूँ कि A इक्वल्स टू 20 करना एंड B इक्वल्स टू 10 करना। तो पॉसिबल तो है भाई, ये कैसे करें? देखो, पहले क्या बोला, दो जो बोले वो लोग क्या बोले, टेम्पररी वेरिएबल क्यों लेना चाहिए? पहले देखो क्या होता है, एक टेम्पररी वेरिएबल लेते हैं, टेम्पररी वेरिएबल। हाँ, बोलो बोलो बोलो, क्या रे भाई, बोलो। अच्छा चलो, अगर नहीं बोलना है थोड़ा स्पीकर ऑफ कर, माइक ऑफ कर लो अपना। चलो, एक टेम्पररी वेरिएबल लेना है हमको पहले, ठीक है? टेम्पररी वेरिएबल क्या होता है? टेम्पररी मतलब जैसे एक नॉर्मल वेरिएबल टेम्प करके ले लेते हैं, उसमें हम लोग क्या डालते हैं? पहले A डालते हैं। मतलब क्या होगा, एक, यार सोनादेव, जा फुआ को देखे आओ। बोलो उसका फुआ का फोन है। उसका फुआ का फोन है। माइक ऑफ करवाओ यार। हेलो बोलो लेके जाओ सोनादेव, ना। पूरा 24 is not working।
चलो दिखाते हैं तुमको। चलो लेट्स कंटिन्यू, ज़्यादा टाइम नहीं है हम लोग के पास। ए इक्वल्स टू क्या हो रहा है देखो, ए का वैल्यू जो है टेम्पररी वेरिएबल इसमें चला गया। अब जो हम लोग बी का वैल्यू है ना, बी का वैल्यू हम लोग के पास 20 है, बी का वैल्यू हमने ए में डाल दिया, ठीक है। अब ए बी का वैल्यू ए में चला गया, अब बी का वैल्यू जब ए में चला गया तब हम लोग के पास क्या है, बी को बस बदलना है। अब क्या है इस मोमेंट पे, क्या है इस मोमेंट पे देखो, सब करवा के दे, टेम का वैल्यू इक्वल्स टू 10 है, ठीक है, और ए का वैल्यू भी अभी भी 10 है। इस मोमेंट पे क्या हो रहा है हम लोग के पास, इस मोमेंट के ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू, सॉरी ए का वैल्यू 10 नहीं है, ए का वैल्यू 20 है, और बी का वैल्यू भी 20 है, और अभी भी टेम का वैल्यू भी 10 है अभी तक, ठीक है ना। ये सीन है अब तक। अब बी में टेम को डाल दिए, इस मोमेंट पे क्या हो रहा है, इस मोमेंट में क्या होगा, इस मोमेंट पे ए का बी का वैल्यू क्या हो गया, ये बी का वैल्यू हो गया 10, ए का वैल्यू हो गया 20, ठीक है, चल गया। अब चलो चेक करते हैं कि सही है कि नहीं सही है। printf परसेंटेज डी स्पेस मार के डी स्लैश एन होता है, ये होता है नेक्स्ट लाइन के लिए, ठीक है ना, स्लैश एन, और बी इक्वल्स टू ये, इसको स्लैश एन दे देते हैं, है ना, ए कॉमा रिटर्न, देखो ठीक है एवरीवन भाई, चलो माइक ऑन करो ना यस यार अब। भैया, यस भैया, यस हाँ भैया, भैया। यस भैया। हाँ भैया, भैया ओके भी। ठीक है ठीक है ठीक है, nice, nice। चलो अब करते हैं इसको बंद, कोई भी एक दबा देते हैं इसको। अब हम लोग के पास, हम लोग बहुत कुछ करना का तो मन तो है भाई, क्या करवाए क्या करवाए क्या करवाए, एरेज भी करवा सकते हैं, और एरेस चलो करवा दे क्या, एरेस एरेस का दिखा देते तुमको फटाफट, ठीक है ना, ये समझ गया ना सब कोई। यस भैया, यस भैया। यस भैया। यस भैया। एरेस थोड़ा जैसा मैं करवा रहा हूँ, थोड़ा वो ऊपर हो सकता है तुम लोग, मतलब बहुत लोग के लिए नहीं भी होगा, के लिए हो भी सकता है। देखो तो एरेस के बाद पॉइंटर सिखाएंगे, वो होता है हम लोग का असली चीज एरेस, ठीक है। पहले हैश इंक्लूड डॉट एच, ठीक है, तो इंट मेन, देखो क्या हो रहा है, एरे डिक्लेयर क्या कैसे जाता है देखो। एरे मतलब क्या है, एरे मतलब हम लोग का है कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा, ठीक है ना, सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा। हाँ बोल। Just a thing, we are bit of short in times, and along with Okay. that, if you are like going for the array, I have just got one suggestion. That is, if you can, then go for some like pattern वाला question. पैटर्न, हम्म, पैटर्न उनको वो उसमें दिया है कि उसमें ठीक है ठीक है। उसको सॉल्विंग में दिया है। Okay. And guys, one more thing. The just a second. Okay, and one more thing is that those whose name is after uh, just a second, after, okay, after Udit Kumar, those whose name is after Udit Kumar, okay, so can you please write your name in the chat, it will be very much helpful for us. For the giveaway, a random person will be random, like name will be picked up through our website. The lucky guy will get the vouchers.
थैंक यू दीप्तो, यू मे कंटिन्यू। चलो फटाफट कंटिन्यू करते हैं भाई, ठीक है, बहुत टाइम का शॉर्टेज है। जल्दी से मुझे लगा कि तुम लोग को एरे करवाना चाहिए तो करवा देते हैं, ठीक है ना। तो देखो एरे कैसे होता है, पहले डिक्लेरेशन ऑफ एरेस, इंट ARR करके, ठीक है ना। मैंने एरे क्या बोला, एरे मतलब कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा। सिमिलर टाइप्स मतलब क्या, सिमिलर डेटा टाइप्स का मतलब इन दे रहा ना, इन टाइप का सब होगा, ठीक है ना। अगर फ्लोट देते तो फ्लोट टाइप का सब होगा, ठीक है। अब बोलते हैं 10 21 1 2 3 4 9, सपोज इतना है हम लोग के पास, ठीक है। अब हम लोग को साइज ऑफ एरे चाहिए। अब तो तुम इधर से देखो, काउंट करके तो बोल ही सकते हो, बट देयर इज अ वे। हमको तुम लोग को एक इंपॉर्टेंट फंक्शन समझाते हैं, सबको ये कोड थोड़ा नोट कर लेना, ठीक है ना। देखो हम लोग साइज देखते हैं, एरे का साइज कैसे निकाला जाता है इधर। साइज देखो, ठीक है, साइज ऑफ ARR डिवाइडेड बाई साइज ऑफ ARR 0। देखो मैं बोलता हूँ कैसे क्या हो रहा है, क्या इधर असल में इधर क्या हो रहा है कि साइज ऑफ मतलब साइज कैलकुलेट करता है। देखो साइज क्या कैलकुलेट करता है, उस वेरिएबल का साइज कैलकुलेट करता है। साइज ऑफ का काम ही होता है ये, ठीक है ना। साइज मैं लिख देता हूँ, क्वालिटी ऑफ साइज ऑफ टास्क इज टू कैलकुलेट द साइज ऑफ द डेटा टाइप इन डेटा, ऐसा होता है सर वेरिएबल, ठीक है। ये होता है इसका काम, साइज ऑफ का काम होता है ये, ठीक है। अब जल्दी से करते हैं, फॉर लूप यूज करते हैं इधर। मैं क्या करना चाहता हूँ, हम लोग का इंटेंशन है क्या, पूरा सम, इन लोग का जो सम होगा वो कैलकुलेट करना, ठीक है ना। इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ए साइज, ठीक है ना, आई प्लस प्लस, ठीक है। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये तो करने भूल गया, इन सम इक्वल्स टू 0। सम को 0 करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। इसको भी थोड़ा चलो, ये तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ अब ऐसे क्या करें, सम इक्वल्स टू सम प्लस, अच्छा ऐसा करके भी लिख सकते हो तुम लोग, सम इक्वल्स टू सम प्लस इक्वल्स टू ARR ऑफ आई। ARR ऑफ आई मतलब क्या है, जो भी जीरो, मैं बोला क्या, ये थोड़ा एडवांस हो सकता है बहुत लोग के लिए जिनको प्रोग्रामिंग नॉलेज का आइडिया भी नहीं है। एरे मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा। इसका इंडेक्स होता है, इंडेक्स क्या होता है, ये जो देखो इसका जो इंडेक्स है ना 10, एरे स्टार्ट्स फ्रॉम इंडेक्स 0। इंडेक्स मतलब पेज नंबर समझ लो, ठीक है ना। एरे स्टार्ट्स फ्रॉम इंडेक्स 0। एरे मतलब तुम पेज नंबर समझ लो, 0 से स्टार्ट होता है जितना हो सकता है, ठीक है ना। ये इसका इंडेक्स है 0, इसका इंडेक्स है 1, इसका इंडेक्स है 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ऐसा करके इंडेक्स होता है। अब साइज कैलकुलेट करने के लिए साइज ऑफ यूज किया जा सकता है। साइज ऑफ क्या करता है, साइज ऑफ हम लोग का क्या होता है, पूरा कैलकुलेट करता है एक वेरिएबल का साइज क्या होता है। एरे इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल होगा, ARR इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल, उसका टोटल लेंथ, ठीक है ना। और जीरो क्यों बोला मैंने तुमको, बोला इंडेक्स, इधर जो लिखता है ना हम लोग, इधर आई हो गया, इधर इसका 0 हो गया, ये सब बोलते हैं इंडेक्स को इंडिकेट कर रहे हैं हम। तो इंडेक्स जिस पे 0th इंडेक्स का जो है मतलब 10, 10 किस टाइप का वेरिएबल है, इन टाइप का। साइज ऑफ उसका साइज क्या है, उसको डिवाइड करते हैं, उसके उससे डिवाइड किया जाता है तो हम लोग का साइज आ जाता है, ठीक है ना। तो इसको करते हैं, देखते हैं कोड रन होता है कि नहीं। सर रिटर्न सम, ठीक है, लेट्स सी। अरे साइज, साइज ऑफ साइज, लेट्स सी इंटरलेस, तो 50, दिस इज द सम, ठीक है। कोई कैलकुलेट करता है तो कैलकुलेटर में कैलकुलेट भी कर सकता हूँ, 10
plus 21 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 9 50 आ रहा है कैलकुलेटर करने में, ठीक है? Yes or no, brother and sisters? Yes, भैया. Yes, भैया. Yes. Yes, भैया. Yes, इसको भैया. कोई होगा तो स्क्रीनशॉट ले लो इस कोड का, ठीक है ना? ये बहुत, अगर किसी को पता नहीं है, यार जिसको पता है उसका ले तो भाई ठीक ही है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ, ठीक है ना? चलो हम लोग मूव करते हैं इसमें, जो है एडवांस टॉपिक है एक, जिसका नाम है पॉइंटर्स। हम लोग ने ये कर दिया, बहुत कुछ सीख लिया आज हम लोग ने, ठीक है ना? बहुत कुछ। हाँ, इसका बताते हैं पॉइंटर्स, डिक्लेयरिंग पॉइंटर्स। ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, फिर भी हम लोग करवा देंगे। ये वेरिएबल दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, ठीक है ना? ऐसे करके डिक्लेयर किया जाता है एक पॉइंटर को। मैं कोड करके भी थोड़ा समझा दूंगा कैसे हो रहा है सब कुछ, ठीक है ना? सिंटैक्स, वैर इक्वल्स टू 10, सपोज की देखो, पहले हम लोग ने ये लिखा वैर जिसका मान है, वैल्यू है 10, एड, ये एम्परसेंट, एंड नहीं है, ये एम्परसेंट है और ये स्टार है, दोनों का मतलब क्या है? चलो दिखाते तुमको। एम्परसेंट का मतलब है एड्रेस ऑफ, और स्टार का मतलब है वैल्यू एट, ठीक है? इसको तो हम लोग इसको बंद कर दें। हाँ देखो, बोलता हूँ तुमको, ये नोट कर ले सकते हो तुम लोग। स्टार का मतलब होता है हम लोग के पास वैल्यू एट, और एम्परसेंट का मतलब होता है हम लोग के पास एड्रेस ऑफ, ठीक है ना? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हम लोग जब ये कर रहे हैं ना, ये देखो, इसका मतलब वैल्यू एट ptr एड्रेस ऑफ वैर, मतलब क्या है? वैर का एड्रेस, देखो मेमोरी एलोकेशन बोलते हैं इसको। मेमोरी एलोकेशन इज अ वास्ट टॉपिक इन सी और एनी लैंग्वेज, स्पेशली सी। मेमोरी एलोकेशन और बाकी सब चीजें, एड्रेस होता है। एड्रेस मतलब तुम घर हो, तुम्हारा घर है, ठीक है ना? तुम कोलकाता से कुछ सामान मंगवाए, ठीक है ना? सपोज कि सिलीगुड़ी तक कोई सामान मंगवाए तुम लोग ने, कोलकाता से सिलीगुड़ी तक, तुम्हारे घर तक, ये कुरियर को तुम वैल्यू समझ लो, तुम्हारे घर को तुम एड्रेस समझ लो अपना। उधर तक जो वैल्यू है आ रहा है, वो क्या है? तुम्हारे एड्रेस पे, सपोज कि तुम्हारे एड्रेस पे आया एक वैल्यू, वैर, वैर का एड्रेस में, ठीक है ना? एड्रेस ऑफ क्या बोला? एम्परसेंट मतलब एड्रेस, वैर मतलब ये वेरिएबल, एड्रेस ऑफ वेरिएबल वैर का एड्रेस में क्या वैल्यू है, स्टार मतलब वैल्यू एट, वो पीटीआर में स्टोर हो जाएगा। 10 है इसका वैल्यू, 10 स्टोर हो गया, तो इंड वैर इक्वल, ये नया एक वेरिएबल बना के स्टार पीटीआर करके हम लोग ने लिख डाला, ठीक है ना? ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, जो समझ गया वो बहुत बढ़िया, ठीक है ना? नहीं तो मैं सोच रहा था कि स्वैप करके एक कॉम्प्लेक्स कोड करके दिखा दूंगा, पर वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम यार। तो ये पॉइंटर टू पॉइंटर है, चलो दिखाते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंटर टू पॉइंटर है, और उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? चलो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, उसका पहले मैं थोड़ा ये दिखा देता हूँ, ठीक है ना? मैं सोच रहा था कि स्वैपिंग कैसे होता है एक फंक्शन के थ्रू, वो दिखा देता, पर उसके लिए पॉइंटर चाहिए और टाइम नहीं है मेरे पास, तो थोड़ा दिखा देता है इसमें। इंक्लूड, ठीक है? तो हम लोग ने क्या है, पहले तो हम लोग को इंट वैल लेना है। इंट वैल इक्वल्स टू सपोज कि 10 के, कुछ बोलना चाहते हो क्या? दीप्तो, हाँ बोल। दादा হ্যালো দীপ্ত, बोल बोल बोल। বলছি आई गेस सो, जस्ट अ सेकंड गाइस, तुम लोग का फ्रेशर्स इंडक्शन है क्या आज? Yes, भैया from 7. Yes, भैया. कौन करा रहा है? कौन मतलब किया, कॉलेज से करवा रहा है? हेलो
हेलो, बोलो यार सब लोग। इंडक्शन कौन करवा रहा है? No idea, bro. ब्रो, ब्रो so मेंटेन। what is bro? सीनियर का अविनाश नाम करके कुछ है भैया। क्या नाम है? अविनाश। अविनाश? क्या अविनाश शर्मा? नहीं वैसे Avinash, Rahul, and some others are there. Which year? कुछ आइडिया नहीं है भैया, अविनाश राहुल करके कुछ है। Bhaiya, we got a group to join that, and there we have got the link. What is the name of the group? What is the name of the league? It's an official or anything like that? Any such? No, nothing official actually. Can anyone just forward me the snap of the group name or something like that in my WhatsApp? Okay. Tripto just. The group name is All Branches Fresher Group. The group name is All Branches Freshers Group. Just a second. Anyone coordinator from the second year of CES? Who is there? शायद से अमोल अमोल जी भैया। कौन करवा रहा है? क्या बोले भैया? फ्रेशर्स नहीं इंडक्शन पता भैया, पता करके बताते हैं, 1 मिनट रुकिए। थर्ड ईयर हु इज देयर? थर्ड ईयर से कौन है? श्रेया? हाँ तो आमिया सी। हाँ देखो, तुम लोग का कुछ है आज का प्लानिंग ऐसा कुछ? ना ना No. थर्ड ईयर थे क्यों कर अच्छा। ठीक है guys, we will wrap up within 7. That's not an issue. But We will wrap up within 10 minutes itself. we will wrap up and just we will be having like a bit of one for the giveaway. We have planned for like Slido. You will get a link. You have to join in there, and there will be 5 questions with the timer, and you have to like do it. Okay. Okay. So after that, you will be receiving the thing. Okay. Okay. You may Ram, continue. sure. Let's do it. Okay. Let's accomplish it as fast as possible. ठीक है, तो देखो फटाफट इसमें मैंने कोड करके दिखा दिया इंड वैर, ठीक है ना। इसमें वैल्यू लेयर है। मैंने क्या बोला, एम्परसेंड मतलब क्या है? एम्परसेंड मतलब मैंने लिख के बोल दिया तुमको। एम्परसेंड मतलब एड्रेस ऑफ, एंड स्टार मतलब वैल्यू ऐड, एंड वैल्यू ऐड। ये याद रखना, ये थोड़ा एडवांस हो सकता है बहुत लोग के लिए, बहुत लोग के लिए नहीं हो सकता है। कोई भी C++ में डीएसए करने जाओगे, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, ये नहीं पता होगा तो तुम नूब बन जाओगे, कुछ नहीं होगा। तो ये मैं आज जस्ट तुमको एक स्टार्ट करके दे रहा हूँ, उसके बाद एडवांस में बाद में, क्योंकि वी डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट इन आवर हैंड। ओके, सो यू ऑल हैव टू कंटिन्यू। वी जस्ट मींस कमिटेड टू जस्ट क्रिएट अ बेस एंड फाउंडेशन ऑफ योर्स इफ वी ऑल, ठीक है। तो इसके लिए मैंने जस्ट करवाया। सो लेट्स सी द आउटपुट एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द क्वेश्चंस। ओके, जल्दी से आउटपुट देखते हैं इसका क्या होता है। देखो 10, ठीक है, 10 क्यू है, 10 क्यू है। देखो इसका वैल्यू, वैर का वैल्यू 10 है। जब हम लोग ptr क्या बोले, एड्रेस ऑफ वैर, मतलब वैर जिस एड्रेस, वैर का जो एड्रेस है उसमें कौन सा वैल्यू बैठा हुआ है, 10 ही बैठा हुआ है ना। तो वही हम लोग उसका जो वैल्यू है स्टार्ट ptr का मतलब वैल्यू एड, उसको हमने इधर स्टोर कर लिया, अब प्रिंट करवा दिया, बस 10 प्रिंट हो गया, हम लोग का रिटर्न हो गया, ठीक है ना। बस एज सिंपल एज दैट, प्रिंट डन। एंड नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद, कोई अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता हो तो फटाफट ले लो, एंड वी विल मूव फॉरवर्ड विद द क्वेश्चंस एंड वी विल रैप अप दिस सेशन एज सून एज पॉसिबल। ओके फाइन, ओपन योर माइक्स एंड जस्ट क्लैरिफाई इट। Yes, भैया. Yes. Yes, भैया. Yes, भैया. Yes, भैया. ओके ओके नाइस। यस भैया। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द क्वेश्चंस। देखो बोलो, which function is used to take input from the user in C? Everyone. Scanf. स्कैनर। ठीक है। What is the correct way to okay, nice. What is the correct way to declare an integer variable? मैंने क्या कैसे बताया था? Int. मतलब हाँ, मतलब int कैसे, मतलब int var equals to, जैसे मैंने बताया था, याद है आई थिंक सो।
हाँ Yes. Int What is the variable purpose of equals to something, or only the variable, हाँ, then a semicolon. Int variable name equals to the value. right. Very good, very good. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रिटर्न जीरो स्टेटमेंट इन द मेन फंक्शन? मैंने बताया था, याद है सबको? If you are using int as the main, if you are The using execution of the main program is successful. instead of void, Actually, using to int instead execution of the void. successful, to indicate that For the the successful successful execution of the program. हाँ Yes. termination of the program. Right. Very good. Let's move forward. इसका उत्तर बताओ, ऑप्शन में है, बोलो क्या होगा? 10 सेकंड है। 15. Option C. Option C. 15. Option Option C. Option C is the C. correct answer. Option 15. C is the correct answer. C. Right. क्योंकि नम है, नम को मैंने क्या किया, नम +5 कर दिया इधर, तो 15 हो गया ना, हम लोग को फिर प्रिंट करवा दिया इसको। सही है, हाँ क्लियर है ना? ठीक है, Yes, चलो नेक्स्ट। हमने if else भी सिखा दिया था तुमको कि if else कैसे होता है। राजू का एग्जांपल देके, A का वैल्यू 10 है, B का वैल्यू 20 है, अगर 10 क्या 20 से बड़ा है, Option B. option B. ठीक है, चलो क्या होगा इसका आउटपुट, क्या होगा बोलो? क्लास करो, जैसे करना है करो, बोलो। 10 सेकंड है, 10 भी नहीं, 5 सेकंड है। 15 भैया 15. 10. 15 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है ना? हो गया ये? इसके बाद देखो, मैंने बोला क्या होता है, क्या व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द कोड, मैंने जस्ट दिखाया, पूरा समझाया। B. 10. ऑप्शन बी। Very good. Good. Fantastic. चलो सुनो, इन सब का तुमको काम दे रहा हूँ तुम लोग को, ये 3 और स्क्रीनशॉट लो पहले, ये इस पेज का। Everyone take the screenshot of this. Done भैया। And this one is also screenshot लो इसका। Done? Done. सुनो, ये तुम्हारा काम है क्या, इन दोनों जो 6 क्वेश्चंस है, ठीक है ना, 6-7 क्वेश्चंस है, इन 6-7 क्वेश्चंस को तुम लोग सॉल्व करोगे। लिंक्डइन अकाउंट नहीं है तो लिंक्डइन अकाउंट बनाओगे, उसमें पोस्ट करोगे कि यस आई, जो मैंने सर्टिफिकेट भी मिलेगा तुम लोग को कि तुम लोग कंप्लीट भी किया, उसका तो ई सर्टिफिकेट वैसे भी मिलेगा, वैसे भी मिलेगा कि मैंने पढ़ा, ये सब किया, जो भी तुम्हारा है, मैं सॉल्व करके टैग करना है, ठीक है ना? CS को, कंप्यूटर इंजीनियर सोसाइटी को, SIT का टैग करना है लिंक्डइन में, ठीक है ना? और क्वेश्चंस को सॉल्व करके इसका वो करना है, फॉर्म स्क्रीनशॉट मार के पोस्ट करना है लिंक्डइन में। इज इट क्लियर? Okay भैया। एंड तुम्हारा भलाई के लिए है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है? बस भैया टाइम क्या है? टाइम क्या बोला? भैया ना। क्वेश्चन सॉल्व करके अपलोड करने के टाइम क्या है? One second. सुनो. हाँ। I will be sharing my screen. Okay, I will be sharing my screen. There will be a link for the like a Slido. Okay, for the Slido. There will be a live quiz at this moment. I request everyone join it by your name. There will be the live leaderboard, and for that, by the help of that, the winners will be like declared. So just give us just few minutes, 2 to 3 minutes. Till that we just set up, and we will be back, and we have some more like I guess so someone from the third year technical team. I guess so you have planned something for the 30 days or something like that, so you can like share it to all of them. हेलो। बोलो। सॉरी भैया, मेरा स्क्रीनशॉट पहले वर्क नहीं कर रहा था, क्या मैं फिर से वो क्वेश्चंस देख सकता हूँ? ठीक है, ले लो भाई। थैंक यू भैया। इससे ले लो ना, और क्या प्रेजेंट करूं, तुमको तो पता ही है।
ये वाला और ये वाला, है ना? एक मिनट भैया, ये दूसरा वाला ले रहा हूँ। ओके भैया। ठीक है, डन। चलो, मैं वो लोग स्लाइडो में करवाएगा, ठीक है ना? आज का सही था सेशन, स्लाइडो में तो होगा, भागना मत, कोई भी भागना मत, ठीक है ना? सब बताओ कैसा लगा, सबको फीडबैक बोलो। हाँ बहुत अच्छा बहुत था। अच्छा भैया। बहुत अच्छा भैया। बहुत अच्छा भैया। बढ़िया बढ़िया भैया। बढ़िया, मजा आया ना? बढ़िया। यस ठीक है ना? भैया। हाँ भैया। कोई मुझे लिंक्डइन वगैरह में, इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहता हो वो भी कर सकते हो, ड्रिप मुजुमदार, ठीक है ना? चलो, मेरा प्रोमो मैं खुद भी कर दिया थोड़ा, चलो, ठीक है। सो फॉर आई हैव सम मोर स्टफ्स टू डू राइट नाउ, सो आई एम लिविंग। रेस्ट, डोंट लीव यू गाइस, प्लीज गाइस, डोंट लीव, परफॉर्म, ठीक है ना? पार्टिसिपेट इन द स्लाइडो एंड Thank you, Dripto, for the wonderful session. okay, Okay, so So, thank you guys, I'm just leaving, thank you, it has been a great time. thank you. Guys, just wait a few minutes. We'll be like, I will be sharing my screen, and after that, you can like go on with that. Tell them anyone is there like who can moderate. Shaunadeep. Okay, guys. So by having a like a gist of the sessions or today, of we can say that by the participations, do you all want like any more what to say offline events? Yes भैया। भैया। हाँ भैया। Okay, we will have a talk with your with both the faculties and both the departments. So maximum इधर से ECS का कोई है? नया वाला ब्रांच है ECS. ECS का कोई है? माइक ऑन करो यार. No one is there. Okay, so ECE. Just a second. Yes भैया, I'm from EC. Okay. Civil. Yes भैया। Civil. Civil, no one. Okay. Just a second. Just a second. Just a second. आज का इवेंट कैसा लगा? हेलो। अच्छा। बहुत क्या अच्छा नेक्स्ट? भैया। अच्छा, नेक्स्ट टाइम क्या? नेक्स्ट का टॉपिक बताओ, नेक्स्ट का टॉपिक बताओ, क्या चाहिए, किस पे इवेंट चाहिए? हाँ। और नेक्स्ट का गिव अवे बहुत बढ़िया रहेगा, ये बोल सकता हूँ। अरे बोलो, किस में चाहिए नेक्स्ट वेबिनार और सेमिनार, कुछ भी होगा तो कौन सा टॉपिक चाहिए? मशीन लर्निंग। भैया पाइथन और C++। पाइथन। अच्छा। बेसिक एडवांस। क्या क्या? सी का एडवांस। सी का एडवांस। अच्छा, बेसिक्स क्लियर है तुम्हारा? थोड़ा बहुत। अच्छा। Okay, guys. I guess my screen is visible to everyone at the moment. Yes. Okay, perfect. कोई जल्दी जाओ, इसको ज्वाइन करो, ठीक है ना? जल्दी जाओ, फटाक से इसको ज्वाइन करो. Then we will be starting it. उधर तुम्हारा नाम लिख के सिर्फ ज्वाइन करना, ठीक है? जो हाईएस्ट आएगा लीडर बोर्ड पे उसको ही मिल जाएगा.
गाइस तुम लोग का नाम इधर शो कर रहा है. We will be starting in the next 2 minutes, 3 minutes. 6:45 को हम लोग स्टार्ट कर देंगे. हर एक क्वेश्चंस के लिए तुमको 10 सेकंड ही मिलेगा. ठीक है, ज्वाइन कहाँ से करना है इसको? ज्वाइन करो ना. इधर दिखा रहा है ना, slido.com पे जाओ, नहीं तो ये क्यूआर को स्कैन करो, मोबाइल से ज्वाइन कर लो. सिंपल. अच्छा ठीक है. 100 participants are there and we just got a half the number 56. So अगर किसी को vouchers नहीं चाहिए, so it's not possible. Okay, one more thing, it is like Shaunadeep कहाँ जाता है ये? So 1 minute is left. If anyone is left for joining, kindly join fast. I hope everyone is able to view the screen. Yes, भैया. तुम लोग के मोबाइल पे इधर नहीं, तुम लोग के जब लाइव होगा क्विज, नॉट ओनली इन माई लाइक इन द स्क्रीन यू कैन सी द सेम क्विज विल बी रनिंग ऑन. यू हैव टू आंसर इट थ्रू योर मोबाइल फोन, नॉट बाई लाइक सेइंग इट इन द माइक ऑन करके बोलना, ऐसा नहीं. ठीक है ना, बस जस्ट टर्निंग ऑन द माइक एंड यू जस्ट से whoever give first and whoever gives the correct answer will come in the leaderboard. So we are starting. So let's go for the first. Anyone is left to join? Anyone? Okay, so we are starting. So the first question. So you have got like okay. Come on, guys. This is a very easy answer. Okay, so maximum I've got the like, but someone says James Gosling. Wow. That's Java. That's Java. Guido Van Rossum is for Python, and Dennis. Yeah, right. Dennis is the correct answer. Dennis is the correct answer. Let's go for the next one. So it's a code. Okay, it's a code. हाँ, अभी दीप्त भैया ने बता के गया था बहुत कुछ. तो इधर ऑप्शंस भी है तुम लोग के पास. अच्छा ऑप्शंस मेरे इधर नहीं आ रहा है. अच्छा इधर है. क्या है ये? 26 I've already done, and अभी तक just a second. गलत हो गया.
D और Let's see the leaderboard. Leaderboard नहीं आ रहा है. Okay. चलो next question. It is also pretty much easy one. अबे आया तब ना रिजल्ट में लिखा कि ऐसा मोस्ट मेमोरी डबल था कि फ्लोट था कि कैट था. Think before answering. which of the following data type occupied the most memory in C? सर्च मार दे. Everyone is saying int, someone is saying double, and someone, only some few are saying like that. Okay, so let's see. Yeah, the float is the correct one. Okay, next. Hello, Dada. Actually, we have interview from 7. Okay, okay, no issue. We will be SIT photography club, right? We will be sorting it out. No issue. Just mention that you were in CS quiz. No issue. लास्ट वाला ऑप्शन मत देना भाई, वो गलत है थोड़ा. ठीक है, डोंट थिंक दैट इज द करेक्ट वन. Choose among A, B, C, and D. Don't just option 2. Just ignore it. अरे बाप रे. Let's see. Chalo, next we are behind of just 3 questions, and we'll get the final leaderboard. क्वेश्चन रिपीट हो गया सर, अच्छा ही हुआ तुम लोग के लिए. Think this question. This is little like tricky. So this is the last questions we have for today, and it's like a nice one. In fact, जो जिप्तो भैया अभी तक बना के गया, so उसके ऊपर ही है. So which one of the following is not a valid variable? It's a nice one. Not a valid variable. देखते हैं. Think the first rule normally of any programming language variable name. Perfect. Yeah. Actually, you can't start any variable name in any of the languages.
C, C++, or Java with any number. Okay, so okay. So here's the leaderboard, but timings happens. Akash Kumar कौन है? Akash Kumar, Prithvi and Advik Vardhan. Akash Kumar stands the first, I guess. Thank you, भैया. पृथ्वी कौन है? Bhaiya, it's me. Who? Okay, and Advik Vardhan. Yes, भैया. Okay, so Shaunadeep, how many vouchers you have? Okay, Arunangsuda, let it be 3. First, second, third. No issue. I will manage. Okay, so you will get the vouchers, I guess. So Shaunadeep भैया है, वो आप लोग को वाउचर्स दे देगा. शायद से कुछ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का होगा, नहीं तो वो बता देगा. ठीक है, you will be receiving it. And others, it was like a nice one. I hope so everyone liked it. This like the today's session. This time just like we did it in a very hurryful manner, so the vouchers were less. From next time, we will be arranging LinkedIn vouchers, and for gamers, 3 months Xbox voucher. I guess that is huge, especially for gamers. Xbox voucher. Okay, and you can like I'm just sharing our sharing the screen once more for like if you want to follow us on our social media handles. And always like do follow us on Instagram, on LinkedIn. It's We our- will be it's getting our- the updates over there. Yeah, it's our Facebook page. I guess it's been showing everywhere. It's directly our coordinator sir, our HOD sir. It has been totally under him. It's our what we say Instagram, and we have our LinkedIn as well. Okay, so thank you everyone. It was nice having a session with you all. Hope so we'll be meeting up soon again, and if it can be possibly for an online one. Sorry, an offline one. An offline event we are planning out for sure. Yeah. So, but we hope so after puja. Enjoy your puja, and Thank you. and just one Thank more you guys thing, for joining the meeting for a long 2 hours session. Nice meeting you all. Thank you, भैया. Thank you everyone, and if you just keep a follow on the Instagram, if you get some, we'll be updating there. Okay. Okay, भैया. Okay, Thank भैया. you, भैया. Okay, भैया. Thank you, भैया. Thank you for your Thank you, yeah. भैया. Thank you everyone. Thank you, Thank you very भैया. much. Okay, भैया. Thank you, भैया. Thank you. Right.